Good morning class. Again welcome in my YouTube class. Student, in the previous class we have discussed about the linear equation in one variable of exercise 2.4. We have completed from question number 1 to 3. Now today we will discuss about the question number 4 and so on. Okay, let us start. Now question number 4 is given. One of the two digit number is 3 times the other number, and if you interchange the two digit number and if you interchange the two digit number and the addition of the new number to the original number is 88, then find the what is the number. We have no any idea what is the number is given, so let us consider that number be x. Let the one digit या फिर let the unit place digit be x. Okay, other digit is 3 times the original number. Okay, 10th place digit be 3x, because question say if one of the digit of two digit number is 3 times the others. Okay, so we have no idea what is the that number. That number may be x and other number may be 3x, like this. Okay, now again question say then two digit number b. I have already discussed about how can we write. Suppose here is 32, we can say 3 into 10 plus 2. We always multiply 10 with the 10th place number and we add unit place number like this. We get 10 into 3, 30 plus 2, it means 32. It is clear? Similarly, the what is the number? 10th place number we should multiply by 10 and plus unit place. So this one is a 30, x plus x is equal to 31x. Right? Question say interchanging the digit. Interchanging the digit, it means we should interchange x plus 3x like this. If you interchange the digit 3x multiplied by 10, we should multiply x into 10 plus 3x. The number should be 10 plus 3x, it means 13x. या फिर we use directly by here. ये 31 है, after interchange 31 should be 13x. It is clear? According to question say the sum of the digit of two digit number means original number is adding to the previous number. ठीक है, इंटरचेंजिंग नंबर. आपका ओरिजिनल नंबर क्या है 31x और इंटरचेंजिंग नंबर क्या है 13x. इसका सम क्या है 88 आया है. इट इज क्लियर? द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड इंटरचेंजिंग नंबर इज 88. व्हेन वी ऐड 13 प्लस 31 इज इक्वल टू 44x is equal to 88. We have to find the value of x. Okay, here please see here 44 is in the term of the multiplication. After transpose it will be converted into the division like this. X is equal to 88 divided by 44. We will divide it at 2 times. The value of x is equal to 2. Okay, then what is the digit? तो लिखेंगे then 2
डिजिट, 2 डिजिट नंबर भी। ओके, फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट 31, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, 31 into 2 is equal to 62, right? The number is 62. 6 is 3 times of 2. It is clear here. देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में 62 है, 6 जो है वो 2 का 3 टाइम्स है, तो ये आपका नंबर ही होगा। तो मैंने आपसे बताया था जब भी आप आंसर लिखिएगा तो यू शुड राइट आंसर 62 और 26। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसमें ये नहीं बोला है कि यूनिट प्लेस वाला 3 टाइम्स है या फिर 10th प्लेस वाला 2 टाइम्स है। वी शुड राइट इट्स आंसर में भी 62 और 26। जब भी इस तरह से 2 डिजिट का नंबर भी आएगा तो जो भी इसमें रिजल्ट आएगा उसको लिखिएगा और उसका इंटरचेंजिंग नंबर भी लिखिएगा। इट इज़ योर फाइनल रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 से Sobo is the student, या फिर Sobo is the any boys. The Sobo's mother present is 6 times the Sobo's present age. So the mother age of the Sobo is 6 times the present age of the Sobo. After 5 years, it means 5 years after, the Sobo's age is 1/3 of his mother's present age. Okay. So we have no idea. The Sobo's age 5 years from the now, it will be 1/3 of his mother's present age. Okay. So we have no idea what is the Sobo's mother present age. Let us consider. Let question number 5 is here. Let the present age of Sobo be x years. Sobo के let us consider the Sobo's mother's present age be x. Then Sobo is क्या होगा? Then Sobo's present age be 6x. Okay, the Sobo's present age will be 6 times his present age of his mother. Okay, let both age after 5 years. Suppose if you have 2 friends, one is 12 years old and other is 13 years old. When you meet after 5 years old, it means the age, both age will be increase, not a particular person will be increase. अगर फर्स्ट फ्रेंड का एज अगर 12 years था, आफ्टर 5 years he will be 17 years, and the second friend's age is 13 years, he will be 18 years. इसका मतलब 5 years की बात कर रहे हैं तो 5 years के बाद दोनों का एज बढ़ेगा। सेम प्रोसेस विल अप्लाई हियर। 5 ईयर बाद सोबो का भी प्रेजेंट एज बढ़ेगा और उसके मदर का भी। देखेंगे 5 बोथ एज आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, सोबोस या फिर हिज मदर एज बी। 5 ईयर्स बाद सबका एज इंक्रीज होगा। ओके, व्हेन if the age are increased we add in the that age. Suppose mother का एज क्या है 6x है, तो we should write 6x. Okay, so present age of Sobo's be x, sorry present age of Sobo's be x। यहाँ पे लिखेंगे Sobo's mother, it is the Sobo's mother present age, then his मदर उसमें इट इज़ क्लियर। तो आपका सोबो के मदर के एज 6 ईयर्स से 5 ईयर्स बाद हिज मदर एज विल बी 6 ईयर्स प्लस 5। देन सोबोज एज भी क्या होगा? सोबोज
एज भी 5 ईयर्स बाद सोबो का भी एज इंक्रीज होगा. इट मीन्स नाउ प्रेजेंट एज एक्स, आफ्टर 5 ईयर्स एक्स प्लस 5. इट इज क्लियर. 5 ईयर्स लेटर द बोथ एज विल बी 6x. ओके, तो इट इज क्लियर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सोबोस एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो सोबोस का एज क्या है? x प्लस 5. इट इज क्लियर. सोबोस का एज आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज. तो मदर का प्रेजेंट एज क्या है? x. द मदर्स प्रेजेंट एज भी 6x. ओके, ये इसके मदर का एज है, ये सोबो का एज है. हाँ, लिसन क्वेश्चन से सोबोस एज आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 1/3. सोबोस का एज 1/3 होगा इसके मदर का. हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है. 1/3 इसका एज है. फॉर द इक्वेटिंग वी डिवाइड दिस मदर के एज. कैसे? फॉर एग्जांपल सोबोस का एज अगर 20 ईयर्स है, इसका मदर का एज ना, ही सोबो एज एंड हिज मदर एज. तो इट इज़ क्लियर. सोबो का जो एज है उसके मदर का एज का 1/3 है. ये 1/3 है, इसमें बैलेंस करना है, इसलिए उसकी मदर में 3 से डिवाइड करेंगे ताकि 20 आपस में इक्वल हो जाए. इट इज़ क्लियर. सो लेट अस सॉल्व दिस सिचुएशन. ओके, इट इज़ डिवाइड आफ्टर ट्रांसपोर्ट इट विल बी कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लिकेशन. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 राइट इज इक्वल टू 6x. वी यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो 3x प्लस 15 इक्वल टू 6x. यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ भी सेम वेरिएबल है. वी शुड ट्रांसफर ऑन अ RHS. 15 इक्वल टू 6x माइनस 3x. 15 हो जाएगा, अब हो जाएगा 3x. इधर 3 इंटू में है, आफ्टर ट्रांसपोज इट शुड बी इन डिवाइड. ये आपका 5 ईयर्स. तो x की वैल्यू क्या होगा? 5 ईयर्स. तो सोबो का प्रेजेंट एज जो है वो आपका 5 ईयर्स हो गया. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? ये सोबो का प्रेजेंट एज हो गया. मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा? देखेंगे, हिज मदर एज बी. मदर का प्रेजेंट एज कितना है? 6 इंटू एक्स. इट मीन्स 6. द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5. 6 5 30 years. It is clear. The present age of Sobo will be 5 years and the present age of his mother will be 30 years, which are mentioned here. It is okay. It is 30. It is the final result of question number 5. It is clear. Now let us start next question. Now let us start question number 6. Question number 6 is given. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Maholi. Maholi में कोई स्कूल है जिसमें एक प्लॉट है रिजर्व किया गया है. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो हो 11:4 है. We have no idea what is the length original, what is its actual length. एक्चुअल लेंथ नहीं पता है कि लेंथ क्या है ब्रेथ क्या, बट रेशियो आर गिवन 11:4. ओके, तो लेट अस, आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर कि व्हेन रेशियो आर हियर, तो फॉर रिड्यूसिंग द रेशियो वी कंसीडर एट ए कांस्टेंट लाइक वी कंसीडर अ वेरिएबल लाइक x, y and z. ओके, लिखेंगे लेट द रेशियो ऑफ डायमेंशन, रेट द रेशियो ऑफ डायमेंशंस b. डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ. डायमेंशन b x, तो लेंथ का क्या हो जाएगा? लेंथ b, l की वैल्यू क्या होगा आपका 11x. विड्थ क्या होगा?
विथ बी, विथ को हम बी से मान लेते हैं, लेंथ को एल से, ये आपका 4x, ये लेंथ और ब्रेथ का है। क्वेश्चन इज गिवन एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, पर मीटर मीन्स अगर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया कंसीडर करते, बट पर मीटर इज गिवन इट मीन्स इट इज़ द पेरीमीटर। 100 पर मीटर विल बी द कॉस्ट ऑफ विलेज पंचायत इज 75 लाख, ठीक है, 75,000 सॉरी, आपका गिवन है इन द बुक में 75,000, मतलब अगर कोई उसका जो रेट जो दिया है 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर से उसका जो पंचायत का जो फेंसिंग उसको कलर करने का जो कॉस्ट है वो 75,000 है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, हमको नहीं पता है, हमको बस एक से बोला कि अगर 1 मीटर उसको फेंस कर रहा है तो 100 रुपया ले रहा है, लेकिन उसने टोटल कास्ट कितना दिया है 75, तो लिखेंगे उस टोटल कास्ट मतलब उसका एरिया क्या होगा, उसका टोटल लेंथ क्या होगा, तो लिखेंगे द कास्ट ऑफ फेंसिंग, द कास्ट ऑफ फेंसिंग इज 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़, द कास्ट ऑफ फेंसिंग इज 100 रुपीज़ फॉर 1 मीटर, or you can also write the cost of fencing of 1 rupees per meter is 100 rupees for 1 meter। टोटल कॉस्ट कितना दिया है, टोटल कॉस्ट इज, ठीक है, 75,000, राइट, 110, 100,000, 10,000, 75,000 आपको दिया है, तो लिखेंगे टोटल लेंथ, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट बी 75,000 अपन में 100, ये आपका आ गया 750 मीटर। इसका मतलब टोटल उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को पेंट करने में अगर हम 1 मीटर के हिसाब से अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 75,000 के हिसाब से उसमें कुल कितना यूनिट, कितना मीटर उसने पेंट किया होगा, 750 मीटर वो पेंट किया होगा। तो वी नो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 750 है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B 750, राइट, देन यूज द वैल्यू 2, द लेंथ इज 11x, ब्रेथ इज 4x इक्वल टू 70 50, तो ये आपको हो जाएगा 11 प्लस 4 15 हो जाएगा, x इक्वल टू 750, ये इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें देखते हैं 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 15, तो ये जाएगा x इक्वल टू 375 अपॉन 50, ये 15 इंटू में था, आफ्टर ट्रांसपोज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिवीजन। अब इसको डिवाइड करते हैं, 15 2 जा 30 होगा, राइट, और आपका 7 बच जाएगा, 15 5 जा 75, राइट, 15 5 जा 75, ठीक है, 30 और ओके 75 हो गया, तो x की वैल्यू आ गया 25। अब इस x की वैल्यू को उठा के लेंथ में रख दीजिए, यहाँ पे x के साथ और इसके साथ ब्रेथ में, ठीक है, तो आपको जो एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ है वो आपको फाइंड हो जाएगा। ओके, आफ्टर सॉल्व यू विल सॉल्व हियर, ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ भी 11 इंटू 25, ठीक है, 25 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, कैरी ओवर 5, 11 2 जा 22, 22 और 22, 11 2 जा 22 और 5 27, इट इज क्लियर, 25 बजा 25 2 25 और 25 टू 27, इट इज क्लियर, लेंथ ही हो गया। ब्रेथ कितना होगा, 4 इंटू 25,
is equal to 100 meter. It is clear. The length of the rectangle plot will be 275 meter and the breadth of the plot will be 100 meter. It's okay. It is final result of this question. Now you will try to solve the question number 7 and 7. You will try the next question. We will discuss in our next lecture. Okay, that's all for today. Again I am saying, please like and subscribe for the receiving the upcoming video directly. Thanks to all of you and have a nice day.